ગુજરાતીમાં એક શબ્દ એક એક્સપ્રેશન છે, સપનો કા મહેલ. સપનોની દુનિયામાં હિન્દી અને ઉર્દુમાં છકોમકો અને અડુખ્યો દડુખ્યો, અને ત્યાં મેં એક જગ્યાએ સાંભળેલું કે શેખ ચલ્લી એક શબ્દ છે. શેખ ચલ્લી અને સપનોની દુનિયા, સપનામાં રહેવું. શેખ ચલ્લી તબિયત માટે બહુ સારી છે કે તમે રોજ મુઠિયા મારતા હો અને તમને એવું લાગે કે હવે મને કોઈ ચોદવા નહીં મળે, તો તમે મુઠિયા મારતા મારતા વિદ્યા બાલનનું નામ લો કે ભેંચોદ રવિના ટંડનનું નામ લો કે હું એને ચોદું. એને શેખ ચલ્લી કહેવાય. તમે કડકા હો એકદમ ઝીરો બેલેન્સ, અને તમે આખો દિવસ આમ વિચાર કરો કે કાલે આ લોટરી લઈશ, પગાર આવશે અને હું લોટરી લઈશ અને એમાં મને, અને પછી તમે એમાં મહેલ બનાવી દો. કલાકોના કલાકો મહેલોના મહેલો બનાવી દો. તમે તમારા દુશ્મનની ગાંડ મારી દો. તમારી ભેંચોદ કોઈ પર્સનલ દુશ્મની હોય, તમારા દોસ્તાર જોડે, ભાઈ જોડે, બહેન જોડે, બાપ જોડે, મા જોડે, औरतની જોડે, તમે એની માં ચોદી નાખો. પણ એ જે સેક્શન છે માઇન્ડનું, એની કોઈ લિમિટ નથી કે ત્યાં કોણ પહોંચે ને શું પહોંચે ને શું થાય, એની કોઈ લિમિટ નથી. એવી જ રીતે જે હું અત્યારે જે ડિસ્ક્રાઇબ કરી રહ્યો છું એ શેખ ચલ્લી, સપનોના મહેલ, લવડા લસુન, ભારતની ઓપોઝિશન પાર્ટી, એ ઓપોઝિશન પાર્ટીના જે સ્પોન્સર્સ છે, એ લોકો જેટલા પૈસા ખર્ચે છે ઓનલાઈન, ફેસબુક, સોશિયલ મીડિયા અને બધા ઉપર, એ બધામાં એ શેખ ચલ્લી અને એ સપનોની દુનિયા નજર આવે છે. ભારતીય જનતા પાર્ટી એવી, હું એકચ્યુઅલી ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે મને કોઈ એક રૂપિયાનું બી માન નથી, અને જે દિવસથી ગુજરાતનો ફેંકું એનો એ પાર્ટીનો કેન્ડિડેટ તો બન્યો નહોતો ભોસડીનો, અમેરિકા જેવું નથી, હી વોઝ નોટ નોમિનેટેડ, પણ એ પ્રાઇમ મિનિસ્ટર એ બનાવ્યો. ત્યારથી મને બે વસ્તુની મેં કમ્પ્લીટ લાઈફ લોંગ, કારણ કે લાઈફ હવે બહુ એટલી બધી બચી નથી, કે મેં ડિસિઝન લીધું કે બોયકોટ ગુજરાત ફોર રેસ્ટ ઓફ ધ લાઈફ. એન્ડ સેકન્ડ, Heku, he can become the Prime Minister of America, or he can become Prime Minister of Russia, or he can become Prime Minister of Pakistan, and he can become Prime Minister of all this country together. For me, he is a Heku. He is a Padaniya, and he is a Mother Chod Lukha. जो अपनी औरत को भैंचोद न्याय नहीं दे सकता है, वो किसी को न्याय नहीं दे सकता है. राम भगवान की तो उसने मां चोट डाली है. लेकिन हम आज बात कर रहे हैं शेख चल्ली की. राहुल चूतिया जी और उनकी बहन लौंडी जी और उसकी मां भोसड़ी की
और कौन है वो पार्टी में, जो भी आपका शेख चल्ली का समय चल रहा है भैया। संस्कृत જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં જાઓ તો બહેનચો અત્યારે રાહુલ ગાંધીની કુંડળી દેખાડો તો એમ કે સાહેબ તમારા નેક્સ્ટ જૂનની 3જી તારીખ સુધી, જૂનની 4થી તારીખ સુધી તમારો સમય ઉત્તમ છે, રાજ્યપદ તમને મળશે। એવી રીતે એના બધા લંડુસ ફંડુસ બધા છે, ખરગે ફરગે લવડે લસુણ, એ બધાની કુંડળીમાં અત્યારે 30 દિવસનો યોગ છે, રાજયોગ છે એ લોકોને। અને ફેંકું અને એની જે ગુંડાઓની ગેંગ છે એ લોકોએ એટલું ફર્સ્ટ ક્લાસ આ સેટઅપ કર્યું છે કે ભેંચોદ આખું ઇલેક્શન રીગ કરવાના છે એ લોકો કમ્પ્લીટ। અને બધા જ ઇલેક્શન રીગ કર્યા છે 2014થી માંડીને। પણ એ લોકોએ એવી શેખ ચલ્લી આ લોકોને આપી છે કે 5મી જૂને હું આટલો આપણે બહુ દારૂ પીએ રાઈટ, તમે બહુ દારૂ પીધો બીજે દિવસે તમારી બૈરી કે તમારો દોસ્તાર એમ કહે કે શું તું તો બેન્ચો કાલે રાતના નાગો નાખતો હતો, લો પેન્ટ ઉતારી લીધેલું તે ભોસડીના, તો તમને એ માનવામાં નહીં આવે। હવે ઘણા આલ્કોહોલિક એનોનિમસ AAA એક એજન્સી છે અમેરિકાની, એ લોકો આ સિચ્યુએશનને એ લોકોને ખબર છે એટલે એ લોકો શું કર્યું કે બૈરાઓને એવું કીધું કે જુઓ અમે તમને ફ્રી કેમેરા આપીએ છીએ, દારૂ પીને તમારો લોડો કે લટ્ટું કે પોસડો બૈરા બી પીતા હોય તમારે રેકોર્ડ કરી લેવાનું, બીજે દિવસે તમારે ટોપિક તમારે નહીં ખોલવાનું, જ્યારે ટોપિક ખુલે ત્યારે તમારે એને કહેવાનું કે ત્યાં આવું કીધેલું, क्या भोसड़ी की क्या बात, भोसड़ी का क्या बात करता फेंकू। राहुल गांधी बेंचो सवार में उठी ने बेंचो तुम लोग क्या बोलते हो रे, कौन सा राजयोग की बात करते हो, ત્યારે એ રેકોર્ડિંગ એને દેખાડે। સો હું અત્યારે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ટેક, આઈ માઇટ કમ બેક, બટ આઈ એમ સ્ટીલ very firmly, I still firmly and very strongly and unanimously believe that it is going to be, there are 543 plus 2 only for Chut, if I am not wrong, or 2 only for Jang Harijan Bhangi, so 545 जो भारत की लोकसभा में सीट है बैठने की, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा लोअर हाउस, उसमें से 480 फेंकू की पार्टी जीत जाएगी। आज 4 मई है मेरे हिसाब से, और एग्जैक्टली 30 डेज के बाद इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। इलेक्शन के रिजल्ट का आना और उसको दिखाना और मीडिया, सोशल मीडिया, सब ये जो शेख चल्ली का मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सब इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया से लेके मीडिया, सोशल मीडिया, फॉरेन पावर्स जर्मनी एंड यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा और पाकिस्तान, सब लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान कांग्रेस को लाना चाहती है। मैं एकदम, ये चूतियागिरी है, ये एक ऐसी चीज है कि सुनील गावस्कर T20 के बारे में कुछ कमेंट दे। सुनील गावस्कर को
घंटा भी मालूम नहीं है इंस्टेंट क्रिकेट क्या है। वैसे ही जो शाहबाज ब्रदर्स आए हैं, आप याद रखना कि जब फेकू इलेक्शन में फर्स्ट टाइम जीता था, वो पाकिस्तान के ऊपर से फ्लाई हो रहा था, उसने लैंड किया। मैंने उसको बहुत क्रिटिसाइज किया था, और वो नवाज शरीफ की मदर के लिए साड़ी लेके गया था। अपनी औरत के लिए उसने जिंदगी में साड़ी नहीं ली, अपनी माँ के लिए जिंदगी में साड़ी नहीं ली, और नवाज शरीफ की माँ के लिए साड़ी लेके गया। लेकिन भक्त लोग जो है हिंदुस्तान के, वो लोग बोलते हैं कि ये तो बड़ा मादर चोद, हमारा भगवान है ये। देखो भैया, ऐसा पाकिस्तान का आईएसआई का एक मैंने कहाँ सुना था कि पाकिस्तान इंडिया के साथ सिर्फ उस दिन कोई भी एग्रीमेंट करेगा जिस दिन इंडिया में हिंदू गवर्नमेंट होगी, बिकॉज दे वांट टू शो टू द वर्ल्ड कि हमने जो एग्रीमेंट किया है वो भारत के हिंदू गवर्नमेंट के साथ किया है। कांग्रेस इज बेइंग चोद इज ए सेक्युलर गवर्नमेंट। कांग्रेसी होना दोनों तरफ से दुश्मनी है। तो अगर आप लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान का ये मानना है कि राहुल गांधी वापस आए, राहुल गांधी वापस आएगा तो पूरा वो जो सब पहनचो बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी आ भी गया और उसने पाकिस्तान के साथ सुलह किया, तो 88% हिंदू उसको मानेंगे नहीं। बीजेपी के पास अभी 5 लाख करोड़ रुपया है, वो राजीव गांधी, राहुल गांधी और उसका पूरा परिवार का बहन चौथ मर्डर कर देंगे, और वो बोलेंगे हमको इसको मंजूर नहीं है। तो उसके सामने क्या करेंगे? इससे अच्छा पाकिस्तान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वो बीजेपी के साथ जो भी है, कश्मीर दे देने का है दे दो, बहन चौथ। नरेंद्र मोदी फेकू को बोलो कि तुम पाकिस्तान की हर एक लड़की को चोद सकता है फ्री, हम एक के बाद एक रोज भेजेंगे, वो भी उनको मंजूर होगा। लेकिन बीजेपी, हिंदू गवर्नमेंट विल डिसाइड इट, नॉट समबडी ए चूतिया लाइक महात्मा गांधी जीना। गुजरात के ये 2 काले धब्बे हैं भारत के लिए, गांधी और जीना। मैं तो पटेल को भी गिनता हूं उसमें। पटेल को मैं क्यों गिनता हूं? पटेल अगर उस दिन ये सोचते थे कि भारत के जो राज्य है उनको मैं यूनियन में ऐड करूं, वो ब्रिटिश के सामने लड़ सकते थे। पूरा हिंदुस्तान उनके साथ में था बेंचोत, वो बोल सकते थे। भले गांधी जी ने ये मिस्टेक किया, नेहरू ने मिस्टेक किया, मैं बेंचोत पूरा पाकिस्तान के जो राजपाट है वो सबको इंडिया के अंदर यूनियन करने का ऐलान करता हूं भारत की आर्मी के साथ। वो नहीं किया उसने, क्योंकि वो मालूम नहीं कौन से प्रेशर में था, कौन सा। लेकिन अगर प्रेशर में आता है तो वो तो उसको तो लोखंडी पुरुष बोलते थे बेंचोत, मैंने ऐसा सुना है। लोखंडी पुरुष को बेंचो कौन सा प्रेशर नड़ सकता है बेंचोत। सो अगेन शेख चल्ली और सपनों की दुनिया की बात मैं करता हूं, तो ये जो 1 महीना है वो ये 1 महीना में बेंचो तुम लोग क्या क्या स्टोरी सुनोगे, फेसबुक के लौड़े बुक के, व्हाट्सएप पे लौड़ा लहसुन बेंचो, ये सब फेंकू के आदमी
और फेंकू का जो टीम है वो लोग बहनचो प्रोड्यूस करके डिस्प्ले करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, सबमिट करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, ताकि जो चूतिया लोग हैं, सपनों में रहने की जिसको आदत है, वो ये देखे और उनका वो फेसबुक प्लेटफॉर्म का और व्हाट्सएप का सब्सक्रिप्शन बढ़े। उसमें पैसा बनाएगा कौन? अंबानी लवड़ा और अदानी लवड़ा, ये सब लोग पैसा बनाएंगे। ये इलेक्शन में पैसा फेंकू का एक प्रिंसिपल है कि तुम भारत के लोगों की मां चोदो, तुम फिक्र मत करो बेइंचोद। अंबानी को फेंकू ने बोला है कि तुम फिक्र मत कर रहे भोसड़ी के, तुम पैसा की नोट छाप। मेरे को ये लोग भेजो राम भगवान समझता है और तेरे को चूतिया करोड़पति समझता है। मैं भेजो राम हूं और राम कुछ भी कर सकता है। सीता को बेंचोत घर में ला भी सकता है। वो सीता राम लंका जाके बेंचोत रावण को मार के सीता को लेके आया और फिर सीता को घर से निकाल दिया। फिर भी राम को कोई बोल नहीं सकता। राम ने जसोदा मैया को बेंचोत जसोदा बहन को शादी करके भी निकाल दिया, चला गया। वो हिमालय में चला गया 50 साल, 75 ईयर्स वो साधु की जगह पे रहा। 15 साल उसने दलाई लामा के साथ बिताए। 135 साल का हो गया हो, फिर भी अभी 64 साल का है बेंचोद। हो सकता है कि वो अभी कल बोलेगा कि मैं तो 27 साल का हूं। तो राम के जो भक्त है, पूरा गुजरात, पूरा राजस्थान, पूरा भारतवर्ष बोलेगा राम का तो अभी जन्म हुआ भैया, अब उसकी शादी कराओ बेंचोद। और गुजरात के हर एक फैमिली बोलेंगे हमारी लड़की हाजिर है, राम आप उससे शादी करो, 27 साल के हो। तो बेंचोद सो ये शेख चली की बात मैं कर रहा हूँ। राम का तो बात करने का मेरा कोई, मैं कुछ बोल ही नहीं सकता हूँ राम के बारे में, लेकिन शेख चली के मैं रावण के बारे में बोल सकता हूँ। राहुल जी, आप मुठिया मारो, मालूम नहीं आपको लंड है कि आप कौन है बेंचोद। आपके जैसा एक और बंदा मेरे जहन में आता है, मैं याद करता हूं, तो वह है राज कपूर का लड़का था, ऋषि कपूर, उसका लड़का। मुझे समझ में नहीं आता कि वो आदमी है कि औरत है। उससे तो भेंचोद वो जो करीना कपूर है, वो राज कपूर की कुछ बहुत उसमें अंश है। ये भोसड़ी का ये छक्का है भेंचोद। अभी मैं एक पिक्चर देखता था कि ऐसा लंड, वो आदमी था लेकिन औरत की तरफ, औरत के उसमें आता है और उसको जब जेल में उसका लंड पकड़ता है तब उसको पता चलता है कि ऐसे ही ये जो बड़वा है उसने शादी की है एक बड़वे की फैमिली में। महेश भट्ट, विजय भट्ट, कौन था उसका भाई, ये भट्ट, दे आर ऑल बेंचोद लुक है। और रणवे को ऋषि कपूर उसको जानता था और इसके लिए उसने कभी भी लाइक नहीं किया। उसमें कोई ना टैलेंट है, ना कुछ लौड़ा है, ना कुछ लहसुन है। रणबीर कपूर और राहुल गांधी दोनों भाई है, दोनों
लुक्खे हैं और उनको बेंचो भारत का प्रधानमंत्री बनने का, राहुल गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनना है। छक्के लोग प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। छक्के लोग सिर्फ तालियां बजा सकते हैं। आप ताली बजाओ। फेंकू 2024 4 जून 480। राहुल गांधी वायनाड और लंड फकीर सब सीट से हार जाएगा, उसकी डिपॉजिट जाएगी। बोरेली में भेजो, मैं बोरेली का हूँ, बम्बई का हूँ, बोरेली का। गोपाल शेट्टी को टिकट नहीं दिया है बीजेपी ने। मध्य प्रदेश में प्रज्ञा ठाकुर को टिकट नहीं दिया है, दिल्ली में रमेश बिधूरी को टिकट नहीं दिया। सब ये मादर चौथ लोगों को टिकट नहीं दिया है। अगर मेरे को अगर वोटिंग राइट मिले इंडिया में तो मैं कांग्रेस को ही वोट करूंगा। कभी कभी हारने वाले को भी वोट देने में जो मजा है वो जीतने वाले को वोट देने में नहीं मजा है। मैं ये सपनों का जो समय है, राहुल जी और उनके जो भी मादर चोद कुत्ते हैं साथ में, कि भाई एक रात में आपको भी एक रोल दिया गया है। फेंकू नहीं, ये काम तो फेंकू का बहनचोद अमित शाह जैसा लुक्खा भी कर सकता है। फेंकू को तो इसमें वो कुछ करता ही नहीं होगा। ये सब डिजाइन अमित शाह और उनके बहनचोद, जो उनका लड़का और ये बहनचोद विराट कोहली और बहनचोद हार्दिक पांड्या जैसे लुक्खे लोग, जिनको कुछ आईटी आता होगा, वो लोग कर रहे होंगे। फेंकू पड़ेगा। तुम लोग मेरे को बहनचोद ढोकला खाने दो, माँ का लौड़ा। और बहनचोद मेरे को दिन में 4 सूट चाहिए। मैंने इसके लिए ये आज रिकॉर्डिंग किया है। मैं फिर शायद अगर मुझे याद रह गया तो मैं 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट होने वाला है। 1 जून को लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन वोटिंग इज लास्ट फेज इज 1 जून, 4 जून इज द रिजल्ट। मैं 1 जून को फिर उसके बीच में रिकॉर्ड करूंगा, तो फिर वो तो कुछ और लंड फकीर के लिए होगा, कोई नो। लेकिन 1 जून को मैं, हो सकता है मैं रिकॉर्ड करूं मेरा एक और सेशन, और मैं बोलूंगा कि भाई आज, अब 2 दिन के बाद राहुल जी और ये सब खड़गे ठाकरे जी, तुम्हारी उद्धव ठाकरे, तुम भी चोद, तुम्हारा बाप, तुम मादर चोद इलेक्शन में अभी क्यों बहन चोद तुम्हारा बाप को ब्लेम करो, एकनाथ शिंदे को नहीं, तुम्हारा बाप को ब्लेम करो। बाला साहेब ठाकरे ने नरेंद्र मोदी को बचाया है, फेंकू को बचाने वाला ये है, और पूरा कांग्रेस पार्टी है। मनमोहन से लेके सब भेंचोद। फेंकू का जो ये स्टाइल है गवर्नमेंट का, जो आप आज देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को वो भेंचोद हाथ में रखा है, पूरा एजेंसी सबको हाथ। वो गुजरात में भेंचोद 17 साल में उसकी भेंचोद मर्जी के सिवा एक पुलिस वाला मूतने को नहीं जाता होगा, तुम्हारी माँ की चूत। और उस टाइम पे भेंचोद तुम उसके ऊपर एसआईटी लगा के बैठे थे। अरे भोसड़ी के लोग, तुम उसको मार देना था भेंचोद। ये मनमोहन सिंह जैसा चूतिया आदमी कांग्रेस पार्टी को मिला। अगर इंदिरा जी होती तो भिंडरानवाले का हालत वो ऐसा करता था। इंदिरा जी भिंडरानवाले जैसी एंड इसको देते थे। ये साला मादरचोद आज तुम देख सकते हो
कि दिल्ली से लेके पूरा इंडिया में भेंचोत एक एजेंसी नहीं है जो उसने अपने कंट्रोल। तो वही वो मॉडल है, गुजरात मॉडल, वो अब दिल्ली में आया है। और दिल्ली का मॉडल गुजरात में 17 साल तक उसने रखा। कोई जज, अरे तुम्हारी माँ का भोसड़ा भेंचोद, वो जो मुस्लिम मर गया ना, उसका बाप को भी वो लोग ने खरीद लिया होगा, फेकू ने, कि उसके वो आएगा तो भी बोलेगा अरे अल्लाह ही मसड़ी बोसड़ी, अल्लाह ची लौड़ी लौड़ी, ये तो भेंचोद एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह जी बोसड़ी जी। और वैसे देखा जाए तो जो कभी कभी क्या होता है कि एंड रिजल्ट, द वे टू अचीव इज नॉट इम्पोर्टेंट, अचीवमेंट इज इम्पोर्टेंट। Irrespective of my party affiliation and my hatred and my dislike for FECO, today, 1 month before the result, and the results I am telling 480 FECO's party will win seat. If Congress wants to win, they have to go to Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan to get the seats. But in India, it's going to be 480. Rahul Gandhi will lose the deposit wherever he contests, and most of the Congress candidates will lose the deposits. Congress will declare bankruptcy after the election. They don't need to. In India, it is not necessary. But technically, they will be out of any active Indian politics for probably 200 years. ये सब होने के बावजूद, which is all these things are not giving me any pleasure, because it is happening something that I am not very happy. But if by chance today is 2024 and in 2029 or 2030, if India can settle under FECO's rule problem with Pakistan on Kashmir, where unequivocally in the UN and in all the world body, including organization OIC, let me rephrase this. If FECO can, number one, first priority, if he can, because Bangladesh is an independent nation, keeping Bangladesh separate, if FECO can dismantle ISI completely. When I say this, I have to say that there should be some kind of agreement where I think when Pervez Musharraf was the president, that both the country will have joint defense, external ministry, and army. Some kind of solution, if it is attainable.
If that is not attainable, at least Pakistan takes off his hand and say that we have no problem Kashmir remaining as part of India. Done. And India has to, in reciprocation, say that whatever happened on the day of independence and thereon for some time, so POK is yours, Indian Kashmir is us, India, and both a country sign and do something like West Germany and East Germany, long forever. If FECU does that, I by 2030, I think that's fine. But शेख चल्ली का जो समय है कांग्रेस का और उनके जो भी लवड़े लहसुन चूतिए लोगों का खत्म हो रहा है 4 जून को 480 लोकसभा सीट फेंकू को केजरीवाल और ये सब भैंचोद हमेशा जेल में रहेंगे राहुल और उनके सबके डिपॉजिट जब्त हो जाएंगे भैंचोद ये मेरा फर्म प्रेडिक्शन है